प्रदेश के सभी जिला सहकारी बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों का 12वां प्रांतीय अधिवेशन मुजफ्फरनगर में भव्य रूप से आयोजित किया गया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम के पहले दिन प्रदेश भर से आए सैकड़ों कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुजफ्फरनगर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रामनाथ सिंह ने की और अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा सहकारी बैंकों में कर्मचारियों की भारी कमी और उस पर तुरंत भर्ती की आवश्यकता रहा। वक्ताओं ने कहा कि ग्रामीणों, किसानों और गरीब तबकों को बेहतर सेवा देने के लिए बैंकों में पर्याप्त स्टाफ होना जरूरी है। अधिवेशन में ये भी मांग उठाई गई कि जैसे भारत सरकार सार्वजनिक और ग्रामीण बैंकों का मर्जर कर रही है, उसी तर्ज पर जिला सहकारी बैंकों का राज्य सरकारी बैंक में विलय किया जाए। इससे न केवल किसानों को अधिक लाभ होगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था भी सशक्त होगी। सहकारी बैंक कर्मचारियों ने पेंशन योजना लागू करने की मांग भी दोहराई। वक्ताओं ने कहा कि लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षित भविष्य मिलना चाहिए। अधिवेशन में पारदर्शी शासन, आंतरिक निरीक्षण और नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत करने पर बल दिया गया। साथ ही राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने और रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यप्रणाली अपनाने पर जोर दिया गया। अधिवेशन का समापन इस संदेश के साथ हुआ कि मजबूत सहकारी बैंक ही प्रदेश की समृद्धि और किसानों की खुशहाली की आधारशिला है। This is KVS Ravi Kumar, General Secretary, All India Cooperative Bank Employees Federation. Today, 12th conference of Cooperative Bank Staff Association Uttar Pradesh is going on. Our beloved chairman, Muzaffarnagar, Ramnath Singh is our reception committee chairman, and Rajneesh Gupta is inaugurator. In this conference, in this 2 days conference, 13th and 14th, we are discussing many issues related to the cooperative sector and employees of the cooperative banks. We are facing many problems. Since 2016, there is no recruitment in cooperative banks. In our Muzaffarnagar, we have 50 branches. Out of 50 branches, we have only 200 staff members. It means for every branch, we have only 2 to 3 regular staff only. Remaining all staff are outsourcing or daily wage employees. It's very difficult. Being a financial institution, we have to run the organization with regular employees. Why? Because we are dealing with cash and gold ornaments. Dealing with cash and gold ornaments with outsourcing employees is harmful to the organization. How do you raise your voice? Yes. All India Cooperative Bank Employees Federation and Cooperative Bank Staff Association demanding for immediate recruitment in cooperative banks. We have many vacancies. In Muzaffarnagar, we have nearly 200 vacancies. Out of 50 DCCBs, nearly we can fill with 5,000 clerks and assistant managers. We are demanding for recruitment. At the same time, structural changes in cooperatives. फर्स्ट जो मस्ट है ये Sorry? फर्स्ट मुजफ्फरनगर Yes. First visit. First, recently, and me, it means in 2024 April, I elected as General Secretary of All India Cooperative Bank Employees Federation. I'm basically from Andhra Pradesh. Being a young comrade, I'm visiting all the states and pursuing the issues of cooperative bank employees. Surely we will deal with all the issues with the state governments and central governments. Recently, many changes are going on in cooperatives under the Ministry of Cooperation, under the leadership of Amit Shah. We are appraising the issues to central government also. सर अधिवेशन बुलाया गया, किस तरह अधिवेशन था, क्या इसके पीछे? उत्तर प्रदेश के सभी जिला सहकारी बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों का 12वां प्रांतीय अधिवेशन आज मुजफ्फरनगर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिला पदों से भारी संख्या में कर्मचारी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मुजफ्फरनगर बैंक के सम्माननीय अध्यक्ष जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता की सिदारत कर रहे हैं। मुख्य रूप से आज के अधिवेशन में विषय यह है कि बैंकों में कर्मचारियों की भारी कमी है। जहां एक और किसानों को भरपूर ऋण सुविधा उपलब्ध करवानी है, आम जन गरीब पीड़ित उपेक्षित को सहकारी साख सुविधा उपलब्ध करवानी है, उसके लिए काम का बोझ तो बढ़ रहा है लेकिन बैंकों में भर्ती नहीं की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार से इस अधिवेशन के माध्यम से मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश के जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में कर्मचारी और अधिकारियों के रिक्त पदों पर अविलंब भर्ती की जानी चाहिए। साथ ही साथ जहां देश में भारत सरकार का वित्त मंत्रालय और भारत सरकार सार्वजनिक बैंकों को आपस में मर्जर करके बड़े और कम बैंक बना रही है, और हाल ही में देश में एक राज्य और एक ग्रामीण बैंक, 1 स्टेट और 1 RRB का सिद्धांत लागू करते हुए ग्रामीण बैंकों का मर्जर किया गया है, तो हम ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन
ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव फेडरेशन के माध्यम से ये मांग करते हैं कि जिला सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंक और पैक्स की जो त्रिस्तरीय सहकारी शाख ढांचा लागू है, उसमें द्विस्तरीय ढांचा लागू करते हुए सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को राज्य सहकारी बैंकों में मर्ज किया जाना चाहिए। उससे किसानों को भी लाभ होगा, प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, प्रदेश का बैंकिंग ढांचा भी मजबूत होगा और प्रदेश में मजबूत और सक्षम सहकारी बैंकों की स्थापना होगी। साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा के लिए देश के सहकारी बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों को पेंशन सुविधा का लाभ दिया जाना चाहिए और सहकारी बैंकों के अंदर कुशल बैंकिंग व्यवस्था, सुशासन और सुराज लागू करने के लिए समय समय पर आंतरिक निरीक्षण और नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत करते हुए पारदर्शी शासन व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। इन सभी मुद्दों पर आज इस अधिवेशन में विचार होगा। अधिवेशन के माध्यम से हमारे संगठन का, हमारी यूनियन का स्पष्ट मत और मान्यता है कि मजबूत सहकारी बैंक प्रदेश की मजबूत अर्थव्यवस्था का परिचायक है। मजबूत सहकारी बैंक किसान की आर्थिक समृद्धि का परिचायक है। अगर शासन व्यवस्था किसानों की समृद्धि, किसानों की खुशहाली और सहकारिता से समृद्धि के नारे को जमीनी स्तर पर साकार करना चाहती है तो सहकारी बैंकों की जो मौलिक समस्याएं हैं, चाहे पूंजी को उपलब्ध कराने की बात हो, कर्मचारी उपलब्ध कराने की बात हो, सुशासन की बात हो, राजनीतिक हस्तक्षेप कम से कम करने की बात हो, इन सहकारी बैंकों में रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया के अनुसार योग्य एवं कुशल प्रबंध निदेशक लगाए जाने की बात हो, इन मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। जब भी केंद्र में सहकारिता मंत्रालय के गठन का लक्ष्य और माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का नारा साकार होगा, इन्हीं सभी मुद्दों पर आज संगठन में विचार होगा। धन्यवाद। अधिवेशन रखा गया, किस तरह अधिवेशन है? आज ये सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स एसोसिएशन स्टाफ की ओर से आज प्रदेशीय स्तर का एक अधिवेशन, जो 12वां अधिवेशन है, तो ये आज ये जनपद मुजफ्फरनगर में रखा हुआ है। उसी के निमित्त आज आना हुआ और मुझे भी सभी कर्मचारियों, क्योंकि सभी लोग जो मंच पर हैं वो सभी प्रदेश के साथ साथ देश के भी अन्य हिस्सों से सहकारी बैंकों के जो वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं वो सब लोग यहाँ पर आए हैं। तो इस बीच में मुझे भी इन सब के बीच में आकर के गौरवान्वित महसूस हो रहा है और अपना भी विषय रखने का अवसर मिला। उद्देश्य क्या है इस अधिवेशन का? उद्देश्य तो यही है कि संगठन है, स्टाफ का संगठन है, तो संगठन को लेकर के क्या क्या अच्छा हो सकता है, बैंकों को लेकर के क्या और सुधार हो सकते हैं, यही सब बैंकिंग व्यवस्था और कर्मचारी को जो चीज़ें अभी तक तो मूलभूत सुविधाएं हम लोग अभी तक नहीं दे पाए, यही सब चीज़ों को लेकर के आज एक विचार विमर्श चल रहा है। कितने दिन तक चलेगा अधिवेशन? कल तक ये 2 दिवसीय अधिवेशन है और ये पूरे उत्तर प्रदेश 35 डिस्ट्रिक्ट नहीं, 35 जिला है। हाँ, मतलब पूरे प्रदेश से प्रत्येक जनपद से कुछ लोग अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं। अतुल जी, यहाँ कहा जा रहा है कि कुछ रिक्त पद भी है, उसकी भी आवाज उठी है। हाँ, वो सब विषय है, क्योंकि क्या है ना, रिक्त पद है तो क्या है कि स्टाफ कम है और स्टाफ कम है तो काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। काम तो नहीं हुआ ना, काम नहीं कर सकते। आज से 10 साल 15 साल पहले जितना कर्मचारी था, आज उसके मुकाबले आधा कर्मचारी रह गया। तो विषय ये मुझे अच्छा भी लगा सभी का कि स्टाफ होना चाहिए। और आज क्योंकि एक बैंक में मात्र 2 या 3 कर्मचारी है, जहाँ 6 और 7 लोगों का स्टाफ होना चाहिए। ऐसे ही ये सब बिंदु, मतलब ऐसे ही सब विषयों को लेकर के, मतलब कर्मचारी हितों को लेकर के, अपने संगठन को लेकर के, इन सब लेकर के, और मुझे भी, क्योंकि मुजफ्फरनगर की धरा पर यह कार्यक्रम था, तो मेरे भी कर्मचारियों ने मुझे यहाँ बतौर मुख्य अतिथि उद्घाटन सत्र में बुलाया, तो मुझे भी सबसे मिलने का अवसर मिला और मुझे भी सबकी बातें सुन भी रहा हूँ। और 2 दिवसीय अधिवेशन चलने वाला है। हाँ, जो भी निकलेगा समाधान उसका प्रयास करेंगे और उच्च स्तर अपनी सरकार में माननीय कोऑपरेटिव मंत्री से जो भी अपने स्तर से हम लोग अच्छे विषय लेकर के जा सकते हैं, रख सकते हैं, उसका ऐसा प्रयास किया जाएगा। मंत्री जी से भी वार्ता हुई है कल योगी जी की, इस तरह के क्या? वो तो कल, अब भाई हमारा एक महासदस्यता अभियान 2025 चलने वाला है, तो कल हम लोग भी लखनऊ में थे
पूरे प्रदेश के लगभग 3-3.5 हजार कोऑपरेटर्स वहाँ पर थे, सभी बैंकों के अध्यक्षगण वहाँ पर थे। तो यही सब विषय जो रिक्त पद हैं और बैंकों का जो सुधार और जो हमारी पैक्स हैं, जो नई पैक्सें बन रही हैं, तो उनके फंड को लेकर के, उनके बिल्डिंग के फंड को लेकर के ऐसे सब कई मुद्दे थे। वो माननीय मंत्री जी ने भी सबको बताया था कि आज शाम को मीटिंग है, तो वो इन सब चीज़ों को माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।